Hallelujah. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus of Nazareth. Glorify you, Jesus of Nazareth. Glorify you, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth, the King of glory. We bless you, praise your name. Praise your name, praise your name, praise your name. Jesus of Nazareth, we praise your name, praise your name, praise your name. We bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, Jesus, bless you, hallelujah. Praise you, Jesus, King of glory, hallelujah. Praise you, Jesus, King of glory. Praise you, Jesus, King of glory. Praise you, Jesus, King of glory. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless you, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth. Bless your holy name. Bless your holy name. Praise you, Jesus of Nazareth. Praise you, Jesus of Nazareth. Magnify your holy name, Jesus, King of glory. Magnify your holy name. Jesus, King of glory, we magnify your holy name. King of glory, we exalt you. King of glory, we lift you up. King of glory, we bless you. We praise you. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Magnify your name. Magnify your name. We magnify your name, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Release your presence. Release your presence through your blood, Lord. Holy sacred presence in our midst. Your holy sacred presence come in our midst. In Jesus' mighty name, we pray for your holy presence. Holy presence, fill this place. Holy presence, fill us all. Fill us all, holy presence. Holy presence of Jesus, flood our hearts. Hallelujah. Tera dhanyavad. Hallelujah. 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 Dhanyavad. Dhanyavad. Oh. Hallelujah. 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 तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आ, 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 Lord Jesus, we thank you for your presence. I pray for everyone that has logged in. May you bless them. May you touch their hearts. May you anoint them. May you cover them and their families under your blood. I speak divine protection. I speak that you will deploy the angelic host around them. तेरे दूतों को फूलेगा और तेरे लोगों की रक्षा करेगा। और प्रभु तो अपने दूतों को बचाएगा इस प्लेग से। प्रभु जी अपने दूतों के द्वारा अपने लोगों को बचाएगा इस प्लेग से खुदावन। हालेलुया। यीशु मसीह में तेरा लहू तेरे लोगों पे छिड़कता हूँ। तेरे वचन पे जब हम मनन करें यीशु मसीह, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे से बातें करे। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तुझे जलाल देते हैं यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर अध्ययन करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपनी आप बाइबल खोलें और पहले एक वचन पढ़े सबसे। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, एंड टर्न टू द सेकंड चैप्टर। लूक सेकंड चैप्टर,
और उसका हम लूका रचित सुसमाचार निकालिए 2 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे, लास्ट वचन पढ़ेंगे, लूक 2 एंड द लास्ट वर्ड्स। लूका 2, लूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 52, Luke 2:52. Let me read it for you. It says, and Jesus grew in wisdom and stature favor with God and man. Hallelujah. बहुत अद्भुत वचन यहाँ पे लिखा है, and Jesus grew. यीशु मसीह बढ़ा। सबसे पहले क्या लिखा है? विजडम में। यीशु मसीह बुद्धि में ग्रो करता गया। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह जो अनंत परमेश्वर का अनंत पुत्र है, उसे बुद्धि में ग्रो करने की क्या जरूरत थी? क्या कभी ऐसा समय था जब यीशु मसीह बुद्धि से रहित था? वचन में लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर की बुद्धि है। लेकिन आपको मालूम वचन क्या बताता है? वचन बताता है उसने दुख भोग के, दुख उठा के आज्ञा माननी सीखी। फिलिप्पी प्रेरित पौलुस बताता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और मनुष्य का रूप लिया। ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, और मानवता अपने ऊपर पहन ली। ही पुट ऑन फ्लैश एंड ब्लड, और लिखा है कि वो दास बन गया, सर्वेंट बन गया। आपको मालूम दास के लिए कौन सा शब्द प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करता है? डूलॉस। जब वो नौकर बना तो वो बंधुआ गुलाम बना। 4 तरह के नौकर होते थे इस्राएल में, लेकिन वो सबसे नीचे दर्जे का नौकर बना, और उसने अपने आप को खाली किया, दास का स्वरूप लिया और मानव बना। और उसने परमेश्वर के तुल्य होना वश में रखने वाली वस्तु नहीं समझा। ये कहना गलत होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था जब वो मानवीय देह में था। वो परमेश्वर था। उसकी लोगों ने आराधना की, उपासना की, उसके आगे दंडवत किया, उसने स्वीकार किया। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के इख्तियारों का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह को मानव होने के नाते पृथ्वी में बुद्धि में बढ़ना पड़ा। जीसस नीडेड टू ग्रो लाइक यू एंड मी। कैसे बढ़ना पड़ा? बुद्धि में। आपको मालूम, याकूब यीशु मसीह का भाई था, बहुत ही जबरदस्त एक अगुआ था। उसे पिल्लर कहा गया, कलीसिया का स्तंभ कहा गया। वो व्यक्ति अपनी पत्री में क्या लिखता है? याकूब की पत्री 1 अध्याय के 5 वचन में कहता है, यदि तुम्हारे में से किसी को बुद्धि की कमी हो, बुद्धि मांगता हूं। मुझे नहीं मालूम आपका, हमारा पिता दाऊद राजा इतना विराट यहोवा का दास था, इतना महान राजा था, नबी था और याजक भी था। राजा, नबी, याजक तीनों था। लेकिन आपको मालूम, दाऊद जबूरों को पढ़ें, भजन संहिताओं को, परमेश्वर के आगे क्या करता है? कहता है, हे परमेश्वर मुझे सिखा, हे परमेश्वर मुझे सिखा, हे परमेश्वर मुझे सिखा। ये प्रार्थना करता है। और आप क्या प्रार्थना करते हो? परमेश्वर मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे वीज़ा दे दे, मुझे ज़मीन का प्लॉट दे दे, मुझे फलानी चीज़ दे दे। आप ये प्रार्थना करते हो। हमारे पुरखे पूर्वज यहोवा को कहते हैं, हमें सिखाइए बुद्धि। आपको मालूम, बुद्धि के लिए पुराने नियम में शब्द है होक्मा, और नए नियम में जो यहाँ पे लूका 2 अध्याय के 52 वचन में वर्ड आया, वो है सोफिया। कई लड़कियों के नाम होते हैं सोफिया। यहाँ पे लिखा है जीसस ग्रू। यीशु मसीह रोज रोज बुद्धि में बढ़ता गया। यीशु मसीह रोज रोज पिता से बुद्धि मांगता गया, बुद्धि को परसू करता गया। बुद्धि के पीछे यीशु मसीह प्रतिदिन चलता रहा। आपको मालूम, मैं आपको चाहता हूं से वचन, ये जो शब्द है जिसे हम बुद्धि कहते हैं, ये होकमा वर्ड है इब्रानी भाषा में। यूनानी में है सोफिया। सबसे पहले ये शब्द बाइबल में कहाँ इस्तेमाल हुआ? बुद्धि जिसे हम बोलते हैं, सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल हुआ निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय का 3 वचन। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय के 3 वचन में यहोवा परमेश्वर अपने दास मूसा को एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं
कि जो याजक, महान याजक, महायाजक होगा, सबसे बड़ा याजक, जो मेरे सन्मुख आके मेरी उपासना करेगा, उसके लिए जो ड्रेस बनानी है, पोशाक बनानी है। आपको मालूम, हारून के लिए जो पोशाक बनाई गई, गारमेंट्स ऑफ द हाई प्रीस्ट, वो एक बहुत जबरदस्त वस्त्र था। वो साधारण चीज नहीं था। वो जैसे एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी जिसे महायाजक पहनता था ताकि परमेश्वर की पवित्रताई उस महायाजक को मार ना डाले। और जब तक वो वस्त्र पहनता था उसे मृत्यु छू नहीं पाती थी। आपको मालूम, अगर आप वचन को गौर से पढ़ेंगे, जो प्रधान याजक था हारून, उसके वस्त्र उतारे गए, हिब्रू सेंस बताती है, ताकि वो मर सके। जब तक वो वस्त्र पहने रहता वो मर नहीं सकता था। वो एक ऐसी वस्त्र थे जिसके विषय में यहां पे 28:3 में लिखा है, दो वर्ड है यहां पे हिब्रू में, आसा और होकमा। सबसे पहले बुद्धि शब्द जब आया, होकमा, उसका मतलब है निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना, ऐसी चीज का निर्माण करना जो बड़ी पारलौकिक है। वो वस्त्र जो महायाजक पहनता था बड़े पारलौकिक थे। वो वस्त्र पहन के वो महाप्रतापी परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बना रहता था, उसे मौत छू नहीं पाती थी। और वो ऐसे वस्त्र थे, पारलौकिक वस्त्र थे, जिन्हें पहन के वो सृष्टि के स्वामी रचिता की उपासना करता था। उसके वस्त्र के ऊपर सबसे यहां क्या था, 12 पत्थर थे। 12 पत्थर बड़े अद्भुत हैं वो। आपको मालूम, उसका नाम असल में लूसीफर नहीं है। लूसीफर वल्गेट कैथलिक, असली जो शब्द है 14 अध्याय यशाया की पुस्तक में, वो असली शब्द है हीलियल। हीलियल को 9 पत्थर मिले थे। वो भी महायाजक था, यहोवा की उपासना करता था, ढकने वाला करूब था, अग्निमयी पर्वत पे रहता था। किसी समय उसके ऊपर अध्ययन करेंगे कि वो क्या काम करता था। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर की वाणी बताती है कि परमेश्वर ने मूसा अपने दास से कहा कि मैंने बुद्धि दी है, होकमा दिया है क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला शब्द जब बुद्धि इस्तेमाल हुआ, क्रिएट करने के लिए है बुद्धि। आपको मालूम, आपने सुना होगा 2019 में बहुत सारे नबी नबूवत कर रहे थे। कोई कह रहा था इट्स गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ब्रेक थ्रू, इट्स गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। कोई कह रहा था 2020 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ लाइट। कोई कह रहा था इट्स गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ परफेक्ट विजन 2020। कोई कह रहा था 20 + 20 40 होता है, तो विल्डरनेस से बाहर निकलने वाला साल है, ये शैतान के ऊपर विजय पाने वाला साल है। लेकिन वो सारी प्रोफेसी झूठी हुई। हालेलुया। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हालेलुया। सभी को सुनाई दे रहा है? प्लीज मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा और सुनाई दे रहा है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है, मैं आपको बता रहा था कि वो भविष्यवाणी झूठियां हुई सारी, किसी को पता नहीं लगा। जबकि आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 7 वचन में यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं अपने नबियों को जो पृथ्वी पे हैं बताए बगैर पृथ्वी पे कोई काम करूंगा नहीं। ये वाचा है उसकी। नबी तो कह रहे थे बरकतों का साल है, ब्रेक थ्रू का साल है, डिवाइन फुलनेस का साल है, ईयर ऑफ लाइट होगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था पृथ्वी पे विपत्तियां आ रही हैं। जो सच्चे खादम, सच्चा कलाम, सच्ची नबूवत करते हैं ना, उनको लोग बोलते हैं डूम एंड ग्लूम प्रॉफिट। आपको मालूम, वचन में पढ़ के देखें, कौन बंदा वचन में देखें पढ़ के बाइबल में जो नबी बनना चाहता था? बताइए मुझे, कौन ऐसा बंदा है जो नबी बनना चाहता था, प्रॉफिट बनना चाहता था? और कौन ऐसा बंदा है जिसका जीवन बहुत ही बढ़िया था प्रॉफिट बनने के बाद? बताइए मुझे। यीशु मसीह खुद प्रॉफिट हैं। यीशु मसीह कहते हैं, फरीसियों सदूकियों हो नहीं सकता कि कोई भी सच्चा नबी यरूशलेम से बाहर मारा जाए, तुम मुझे भी यरूशलेम के अंदर मारोगे। अब देखें, पुराने नियम में नबियों को देखें, एलिया को देखें, मूसा को देखें, यशाया को देखें,
जर्मिया को देखें, ओबदाया, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, जपनाया, जकराया, हग्गाय, मलाकाय, सबको देखें। और बहुत से प्रॉफिट हैं जिनके नाम की बुक नहीं है लेकिन उनके नाम लिखे हैं। सैकड़ों नबी हैं। मुझे बताइए कौन सा नबी लोगों के लिए इंडिविजुअल प्रोफेसी करता था, प्राइवेट प्रोफेसीज, और ऑन डिमांड होती थी। बरकत देने जा रहा है, तेरा ये चंगा होने जा रहा है, तेरे को वो आने थी। बताइए मुझे, वचन देखिए, बताइए भाई और बहनों। आपको मालूम सबसे बड़ी करप्शन प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आई। मैं ये मानता हूं कि आज भी परमेश्वर के नबी हैं सच्चे, आज भी परमेश्वर के प्रॉफिट हैं जो यहोवा का माउथ पीस है, जो यहोवा के लिए बोलते हैं। लेकिन बहुत से झूठे नबी हैं और झूठे प्रेरित हैं जिन्होंने परमेश्वर की कलीसिया को ठगा है। हालेलुया। आपको मालूम हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है विजडम, प्रोफेसी नहीं है। नए नियम में प्रोफेसी की डिमेंशन अलग है। पुराने नियम में यहोवा नबियों के द्वारा बोलता था। यहोवा जो यहाँ पे दो पत्थर होते थे महायाजक के, उरीम एंड थमीम, उनके द्वारा बोलता था। यहोवा परमेश्वर हाई प्रीस्ट के द्वारा बोलता था, नबियों के द्वारा बोलता था। यहोवा परमेश्वर सीधा कलाम आता था, दस सेज द लॉर्ड, सेनाओं का यहोवा बोलता है। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा वो सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, पिता की ओर से बोलेगा। न्यू टेस्टामेंट, नए नियम की कलीसिया की अगुवाई नबी नहीं कर रहे। नए नियम की कलीसिया की अगुवाई करता है यहोवा परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको मालूम कई बार आप बोलते हो गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, प्रभु ने ऐसा मेरे को बोला। कई बार वो आपके वाइल्ड इमेजिनेशन होते हैं, आपके इमोशन होते हैं जिसमें आप यहोवा को इम्प्लीकेट कर लेते हो। ये बहुत बड़ी बात है ये कहना कि यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा। ये जो परमेश्वर के महान नबी थे ना भाई और बहनों, पढ़े, इन्होंने कोई हजारों लाखों भविष्यवाणियां नहीं की हैं। इनके जीवन में बहुत थोड़ी थोड़ी इन्होंने भविष्यवाणियां की, और बहुत सारे नबी थे अलग अलग समय पे जो आए परमेश्वर के। अभी तो मैं सुना है, किसी पास्टर जी को मुझे बता रहे थे कि एक नबी आए उनके, वो बोले कि मैं 600-800 भविष्यवाणी तो कर ही दूंगा 1 घंटे में। ऑन डिमांड प्रोफेसीज, प्रोफेसाई पापा, प्रोफेसाई पापा। दिस इज नॉट इन द वर्ड ऑफ गॉड। वचन में लिखा है आपको बुद्धि चाहिए। मालूम क्यों बुद्धि चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है आप याजक हो यहोवा के, और आप राजा हो। ही हैज मेड यू बोथ किंग एंड प्रीस्ट। यू आर मेड ए किंग, यू नीड विजडम टू रूल। आपको राज्य करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। आपको मालूम ये जो क्रिएशन है, ये यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, इसकी फाउंडेशन विजडम है, प्रोफेसी नहीं है। आपको मालूम विजडम ऊपर से आती है, स्वर्ग से उतरती है और आपके अंदर आएगी। और प्रोफेसी कंटिंजेंट है। प्रोफेसी आई तो वो पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो कंडीशनल है आपकी ओबीडियंस के ऊपर। लेकिन अगर विजडम आपके अंदर आई, विजडम एग्जीक्यूट करेगी अपना काम। हालेलुया। विजडम अपना काम करेगी, विजडम मैनिफेस्ट करेगी। विजडम जिस काम के लिए आई है वो काम करेगी। आपको मालूम विजडम आपको सिखाएगी सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन क्रिएशन। इस ब्रह्मांड के सीक्रेट आपको बताएगी। हम जानते हैं कि राजा सुलेमान ने, हमने उसके ऊपर मनन किया था, राजा सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? उसने दौलत नहीं मांगी, उसने ऐसी सेना नहीं मांगी जिससे वो पूरी दुनिया पे विजय हासिल कर ले। उसने ये भी नहीं मांगा कि जिस चीज को मैं छू वो सोना बन जाए। उसने बोला मुझे बुद्धि दीजिए। और दूसरी जगह क्रॉनिकल्स में लिखा है उसने बोला मुझे अंडरस्टैंडिंग दीजिए। बुद्धि के लिए शब्द है होकमा, और अंडरस्टैंडिंग के लिए शब्द है बिना। दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। तो उसने प्रभु से बुद्धि मांगी, और जब उसने बुद्धि मांगी, बुद्धि विजडम पैकेज में आती है। जब आप विजडम मांगेंगे आपको प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेलनेस, सक्सेस, आपके जीवन के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी जो जरूरतें हैं वो सब परमेश्वर पैकेज में देगा।
हालेलुया। आपको मालूम, आप विजडम की औलाद हो। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ विजडम। यू आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ प्रोफेसी, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ विजडम। यू आर ए किंग एंड गॉड हैज गिवन यू ए डोमेन, ए किंगडम। इन ऑर्डर फॉर यू टू रूल दैट किंगडम यू नीड विजडम। आपको मालूम, जूइश रिसोर्सेज बताते हैं कि सुलेमान ने 30,000 प्रोवर्ब लिखी। 30,000। बहुत सी प्रोज लिखी, पोट्री लिखी उसने। उसकी बहुत सी किताबें अब अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन बहुत सी पुस्तकों के रेफरेंसेस हैं, फ्रैगमेंट हैं। उसने बॉटनी के ऊपर लिखा, कीड़ों के ऊपर, छोटे छोटे इंसेक्ट के ऊपर लिखा, तितलियों के ऊपर लिखा, आकाश के पंछियों के ऊपर लिखा। उसने समुद्र की मछलियों के ऊपर लिखा। उसने अलग अलग तरह की मिट्टी के ऊपर लिखा, कैसी सॉइल होती है, रॉक्स कितनी तरह की होती हैं, डायमंड कैसे निकलता है, माइनिंग गोल्ड की कैसे की जाती है, पर्ल्स कैसे बनते हैं, इसके ऊपर उसने लिखा। उसने स्टार्स के विषय में लिखा, क्या राउटिंग है स्टार्स की, कैसे कैसे प्लैनेट मूव करते हैं, क्या उनके सीक्रेट हैं। नेचर के विषय में लिखा, कैसे नेचर चेंज करती है, प्रोसेस क्या है, सीजन कैसे बनते हैं, यूनिवर्स के भेद क्या हैं, मनुष्य क्या है, विजडम क्या है, नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। इन सब के ऊपर सुलेमान ने लिखा, क्योंकि उसने यहोवा से क्या मांगा था? बुद्धि मांगी थी। हालेलुया। राजा दाऊद प्रभु को कहता, मुझे सिखा, लॉर्ड टीच मी। प्रभु मुझे सिखा, अपने मार्ग सिखा, प्रभु मुझे अपने राह सिखा। प्रभु ये प्रार्थना करते हैं प्रभु के धर्मी लोग। ये नहीं करते कोठी दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, वीजे लगवा लो। इनके लिए आप इन झूठे नबियों के पीछे भागते हो, जो आपको बहुत ड्रीमी दुनिया दिखाते हैं। 2020 is going to be this, 2020 is going to be that. God did not hearken unto them. 2020 turned out to be a year of vicious plague. पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी प्लेग का साल बना ये। हालेलुया। आप जरा सोचें, मेरे ऊपर ये 30 साल हो गए प्रभु में चलते। कई नबियों ने शुरू शुरू में मेरे को प्रोफेसी की थी कि तेरी शादी उस लड़की से होगी, उससे होगी, तू इधर जाएगा। कोई प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। समझ रहे हैं आप? ये यूनिवर्स विजडम के द्वारा बनाया गया है। आप किंग हो, आपको प्रोफेसी नहीं चाहिए, आपको डिवाइन विजडम चाहिए। जब आपको डिवाइन विजडम और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप डिक्री करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप रूल करेंगे, अपनी डोमेन में एस्टैब्लिश होकर रूल करेंगे। जब आप रूल करेंगे, विजडम विल गेट यू वेल्थ, विजडम विल गेट यू वेलनेस, विजडम विल गिव यू लॉन्ग लाइफ। बुद्धि आपको ज्ञान सिखाएगी, बुद्धि आपको सिखाएगी खान पान कैसा हो, आपका नैतिक जीवन कैसा हो, आपका आचरण कैसा हो, आपका व्यवहार अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, कलीसिया से कैसा हो, आपने कैसे डील करना संसार में। बुद्धि आपको सिखाएगी, बुद्धि आपको वेल्थ देगी, फेम देगी, बुद्धि आपको बड़े बड़े लोगों के आगे खड़ा करेगी। विजडम विल गेट यू देयर। आपको मालूम, बाइबल के अंदर बड़े महान महान लोग हैं। जोसेफ बड़ा महान व्यक्ति है, डैनियल बड़ा महान व्यक्ति है। इनको कहां से परमेश्वर ने उठाया? अब देखिए, जूइश लोग डैनियल को नबी नहीं मानते, हालांकि कितना महान खुदा का बंदा है दानियल। डैनियल को कौन सी चीज उठा के राजा के आगे ले गई? भविष्यवाणी नहीं थी, बुद्धि जो यहोवा ने दी उसे ड्रीम इंटरप्रेट करने आते थे। यहोवा की बुद्धि थी। मने मने तकेल उपसरीन उसने पढ़ा। आपको मालूम, जूइश लोग क्या मानते हैं? जूइश लोग मानते हैं कि डैनियल को 3,000 लैंग्वेजेस का ज्ञान था। 3,000 डिफरेंट डायलेक्ट्स उसको पता थे। मने मने तकेल उपसरीन, उसने उसको ट्रांसलेट किया। और उसने नबूकदनेस्सर बेबीलोनियन राजा के राज्य में सर्वोच्च पद पे रहा राजा के बाद, और फिर मीड्स एंड पर्शियन लोगों के राज्य में सर्वोच्च पद पे रहा। क्यों? क्या कहा गया था उसके विषय में? कि स्पिरिट ऑफ एक्सलेंस ड्वेल्स इन हिम, उत्तमता का रूह इस व्यक्ति के अंदर वास करता है। हालेलुया। आपको मालूम, लोग कहते हैं फेवर चाहिए, आपको फेवर चाहिए। गुड, वी नीड फेवर ऑफ गॉड, वी नीड फेवर ऑफ मैन। गलत मत समझिए, लेकिन कई बार कोई लोग आप पे फेवर करेंगे और कई बार वो फेवर आपको उनका गुलाम बना देगा, लेकिन विजडम आपको उठा के ऊंची जगहों पे ले जाएगी। विजडम
कि वो एक्सेलेंस आपके लिए मार्ग खोलेगी। हालेलुया। विजडम बुद्धि लेके आएगी, विजडम आपके लिए ऑनर लाएगी, सम्मान लाएगी, विजडम कामयाबी लेकर आएगी, विजडम आपको स्ट्रक्चर देगी कि कैसे आपने स्ट्रक्चर तैयार करना अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी जॉब के लिए, अगर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बिजनेस के लिए कैसे प्रॉस्पेक्ट बनाना है, कैसे चीज़ों को स्ट्रक्चर करना है, चिल्ड्रन कैसे रेज करने हैं आपने, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे नर्चर करना है, आपका सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस हो और छाप हो दुनिया के अंदर आपकी, कैसे आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, उसका स्ट्रक्चर, उसका पूरा प्लानिंग, हालेलुया, प्रभु आपको देगा, क्योंकि आप यू आर द चिल्ड्रन ऑफ विजडम। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर की बुद्धि, इसलिए वचन में लिखा है, क्या लिखा है? विद ऑल योर गेटिंग गेट विजडम, विद ऑल योर गेटिंग गेट विजडम। मैं चाहता हूं ये वचन आप लिख लीजिए, आपने बाद में प्रोवर्ब नीति वचन 1 का 1 से 7 पढ़ना है, फिर आपने नीति वचन 1 का 1 से 7, फिर 20 से 24, फिर प्रोवर्ब 2 का 1 से पढ़ना है। जस्ट मार्क देम डाउन, आपने इनको पढ़ना है। अभी मैं आपको कोई और स्क्रिप्चर देने जा रहा हूं जो हमने पढ़ना है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, वो राजा है, उसकी संतान है हम, और हमारी माँ है विजडम। हालेलुया। विजडम हमारी माता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आपको मालूम, विजडम आपको कहां ले जाएगी? और जब विजडम आपके पास आएगी, आप कभी भी एरोगेंट नहीं बनेंगे जब सच्ची विजडम आएगी, क्योंकि विजडम ऊपर से फ्लो करती है। ये आपको कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से नहीं मिलेगी। ये पॉसिबल है कि आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से मल्टीपल पीएचडीज किए हैं, लेकिन विजडम के मायने में जीरो हो। और ये भी संभव है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो, गांव देहात में रहता हो, कभी स्कूल कॉलेज की इनसाइड ना देखी हो, लेकिन बुद्धि से भरा हो, क्योंकि बुद्धि ऊपर से डिसेंड करती है। हालेलुया। स्वर्गीय बुद्धि जो यहोवा की ओर से आती है। मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़ें हम, एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन निकालिए आप, नीति वचन उसका 9 अध्याय, प्रोवर्ब चैप्टर नंबर 9, नीति वचन का 9 अध्याय निकालिए। इसके ऊपर हम कई दिन स्टडी करेंगे, विजडम के ऊपर, विजडम पे, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, और तीसरा चौथा है रेवलेशन। विजडम, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रेवलेशन। हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब चैप्टर नंबर 9 से पढ़ेंगे। प्रोवर्ब चैप्टर नंबर 9 पढ़िए, अपनी बाइबल खोलिए, नीति वचन 9 के पहले वचन से हम पढ़ते हैं। विजडम हैज बिल्ट हर हाउस, बुद्धि ने अपना घर बनाया है। हालेलुया। आपको मालूम, फिर किसी समय इस पे मनन करेंगे हम। बाइबल दिखाती है कि बुद्धि के 2 एस्पेक्ट हैं विजडम के, एक मेल है, एक फीमेल है, 2 एस्पेक्ट हैं इसके। लेकिन अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं। विजडम हैज बिल्ट हर हाउस, शी हैज सेट अप इट्स 7 पिलर्स। बुद्धि ने जो घर बनाया है, वो घर कहां पे बनाया है? 7 खंभों के ऊपर। हालेलुया। किसके ऊपर बनाया है? 7 खंभों के ऊपर बुद्धि ने अपना घर बनाया है। हालेलुया। मैंने बताया विजडम है होकमा, और बनाने के लिए हिब्रू वर्ड है बाना, और घर के लिए है बेथ, जैसे वर्ड है बेथलहम, बेथलेहम, रोटी का घर। और खंबे के लिए जो वर्ड है वो है अमूड, शिवा आमूड। शिवा मतलब शिवा 7, और ये रूट वर्ड है टोटल, परफेक्ट, कंप्लीट। 7 का मतलब है टोटल, परफेक्ट, कंप्लीट, एब्सोल्युटली लैकिंग नथिंग। इन खंभों के ऊपर उसने अपना घर बनाया है। किसने? विजडम ने। विजडम का जो घर है वो 7 खंभों के ऊपर ठहरा हुआ है। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप एक और वचन पढ़ें,
प्रभुअब में आ जाए, नीति वचन में ही, और उसका 8 चैप्टर निकालिए। नीति वचन का 8, प्रभुअब चैप्टर नंबर 8, और मैं चाहता हूं उसका आप पढ़ें 14 वचन से। प्रभुअब 14 से नहीं पढ़ें, 12 से पढ़ें। हमने पढ़ा है कि विजडम का घर है, देयर इज अ हाउस दैट विजडम हैज बिल्ट एंड दिस हाउस इज रेस्टिंग ऑन 7 पिलर्स। हम सभी वही घर बनाना चाहते हैं जो बुद्धि का घर है। हम सभी वही घर बनाना चाहते हैं जो चट्टान पे है। मैं उस दिन आपको बता रहा था, यीशु मसीह ने बोला वो 5 मूर्ख कुंवारियों को कि चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख क्यों थी? क्योंकि उन्होंने अपना घर चट्टान पे नहीं बनाया। चट्टान पे बनाने की बजाय उन्होंने अपना घर रेत पे बनाया। और आपको मालूम रेत पे बना घर क्या है? मैंने आपको बताया था उनके पास रोशनी नहीं थी, और हमने नीति वचन में से पढ़ा था यहोवा का कलाम, तोरा, परमेश्वर की व्यवस्था रोशनी है। उनके इधर अंदर यहोवा परमेश्वर का कलाम नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, और उनके पास होली स्पिरिट की प्रेजेंस नहीं थी, कुप्पी में तेल नहीं था। दूल्हा सिर्फ रोशनी देखेगा, लाइट। वचन में लिखा है इफ वी वॉक इन द लाइट देन द ब्लड ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट क्लेंजेस अस। You may be walking in the church, you may be walking in a big assembly, but you may not be walking in the light. रोशनी में चलना। आपको मालूम हम रोशनी से पैदा किए गए। जब यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले के अंदर अपना करके श्वास फूका इधर नथनों में, निशेमा खयम हिब्रू वर्ड है, ब्रेथ ऑफ गॉड, ब्रेथ ऑफ लाइफ। परमेश्वर के ब्रेथ के अंदर लाइट ऑफ गॉड है, रोशनी है। वो उसके अंदर गया, एडम बिकेम ए लाइट बीइंग, रोशनी का पुतला बन गया वो। इसलिए उसकी जो स्किन थी बाहर, उसको कपड़े की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी स्किन को रोशनी ने कवर किया था। आदम और आदम का सृष्टा दोनों एक थे, क्योंकि आदम की वही क्लास थी जो उसके सृष्टा की क्लास थी। तो प्रभु ने उसे कहा कि मेरी आज्ञा मत तोड़ना। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना मौत है। परमेश्वर की आज्ञा दीपक है। परमेश्वर की आज्ञा उसका कलाम है। परमेश्वर के वचन की उपस्थिति हमारे अंदर बरकरार रहना अनंत जीवन है। परमेश्वर के वचन से जब आपका जीवन टूट गया, मृत्यु ने आपको दबोच लिया। अब मालूम क्या हुआ? वो जो रोशनी का बींग था एडम, उसकी रोशनी कंजील्ड हो गई सारी। आपको मालूम विज्ञान क्या बताता है? विज्ञान बताता है कि मनुष्य के खून में कंजील्ड लाइट है। वो सारी की सारी रोशनी अंदर चलेगी, कंजील्ड हो गई। ये जो बॉडी है, आपको मालूम, ये बॉडी आर्क ऑफ द कवनेंट है। ये वाचा का संदूक है। ये बॉडी, ये बॉडी, इधर उसका सिंहासन है। ये बॉडी ऐसे डिजाइन की गई। आपकी ह्यूमन बॉडी की आप स्टडी कीजिए, केवल एनाटॉमी की स्टडी कर लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वचन में लिखा है, प्रभु का भक्त कहता है, मैं अद्भुत रीति से और भय योग्य ढंग से बनाया गया हूं। ये टेंपल ऑफ गॉड है। इसे परमेश्वर ने अपनी टेंपल के लिए हालेलुया बनाया, कि परमेश्वर की इटर्नल हैबिटेशन हो, परमेश्वर इसके अंदर वास करे। इसलिए कलाम कहता है, नो ई नॉट दैट ये आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट। ऐसे इसको स्ट्रक्चर किया गया इटर्नली। परमेश्वर ने अपने इनफाइनाइट माइंड में ऐसे बनाया। आपको मालूम, बाइबल में एक शब्द है 12। 12 का मतलब क्रिएट करना। बाइबल में जब कुछ परमेश्वर ने क्रिएट किया तो वर्ड आता है 12, बेरेशित 12 एलोहिम, 12 12 12 शब्द आता है। और दूसरा शब्द है आशा। आशा का मतलब है टेक्निकली क्राफ्ट करना। जो मैंने बताया कि 28 अध्याय निर्गमन की पुस्तक के 3 वचन में यहोवा परमेश्वर ने हारून महायाजक की जो ड्रेस बनाने के लिए कहा, वो एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट था। समझ रहे हैं आप? वो हर तरह की रेडिएशन से उसे प्रोटेक्ट करता था। परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर जो रोशनी है वहां की, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है खुदा की, उसको एंडोर करने के लिए वो इक्विपमेंट बनाया गया था। इसलिए वहां पे वर्ड है आशा। आशा इज यूज्ड विद विजडम, होकमा। लेकिन आपको मालूम, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वहां पे एक अलग वर्ड इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को बनाऊं, और फैशन्ड हिम एंड फॉर्म्ड हिम, 2 वर्ड लिखे वहां पे।
एक है 12 और दूसरा है यत्सार। परमेश्वर खुद इन्वॉल्व था, मिट्टी के पुतले को खुद गूंथा, उसने तैयार किया, मिट्टी की आंखें, मिट्टी के होंठ, मिट्टी का दिल, मिट्टी का सब कुछ बनाया, अंदर के अंग। फिर उसने अपना सांस फूका, नशेमा खयम, हिज लाइट एंटर्ड इनसाइड। हार्ट मिट्टी का था, पल्सेट करने लगा, ब्रेथ फेफड़ों के अंदर गया, फेफड़े एक्सपैंड होने लगे। आपको मालूम कोरोना ब्रेथ ऑफ गॉड के ऊपर अटैक करता है, और जो 5G से रेडिएशन हो रही है वो आपके जीनोम के अंदर पॉइजन क्रिएट कर रही है। जिन कंट्री में 5G टेक्नोलॉजी है, मोर्टेलिटी रेट इज मच हायर देयर। तो वो लाइट कंजील्ड होगी अंदर। ये बॉडी परमेश्वर की आर्क ऑफ द कवनेंट है, जिसमें यहोवा परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। तो आपको मालूम, ये जो घर बनाया बुद्धि ने, इसके 7 खंबे हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा 7 खंबे कौन से हैं। ये सबसे पहला खंबा, इंग्लिश में इसका नाम है प्रूडेंस। आप पढ़ें इसका 12 से मैं पढ़ता हूं पहले। आई विजडम ड्वेल टुगेदर विद प्रूडेंस। किसके संग बुद्धि वास करती है? प्रूडेंस के साथ। हिंदी में मुझे नहीं मालूम कौन सा वर्ड है यहाँ पे, लेकिन प्रूडेंस को अगर आप डिफाइन करेंगे हिब्रू में जाके, तो ये है हैंडलिंग डेली अफेयर, मेकिंग राइट चॉइसेस, मेकिंग राइट डिसीजंस, एंड प्रूडेंस विल गिव यू सेल्फ रेस्ट्रेन ऑल्सो। अपने जीवन के सही निर्णय लेना, सही फैसले करना, सही चॉइसेस, ताकि आपका जीवन सही ढंग से कंस्ट्रक्ट हो। उसके लिए आपको प्रूडेंस चाहिए। होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय का 9 वचन पढ़ लीजिएगा। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है नॉलेज एंड डिस्क्रेशन। नॉलेज एंड डिस्क्रेशन, आई पोजेस नॉलेज एंड डिस्क्रेशन, अगले वचन में लिखा है। नॉलेज पिलर है। डिस्क्रेशन के लिए हिब्रू वर्ड है मेजीमो, मेजीमो, जिसका असली मतलब है डिवाइज प्लान्स, एग्जीक्यूट प्लान्स, डेवलप स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज बनाना, इमेजिन करना, क्रिएटिविटी का होना, ड्रीम करना, किसी चीज का प्लान करना, फ्यूचरिस्टिकली देख लेना उसको, यह है डिस्क्रेशन। नीति वचन 22 अध्याय का 3 वचन पढ़ लीजिएगा, और नीति वचन 14 का 15 और 16 वचन भी पढ़ लीजिएगा प्लीज। डिस्क्रेशन, इसकी मिसाल हम नोहा में देखते हैं कि उसने कैसे उस आर्क को, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, उसको कैसे बिल्ड किया, कैसे परमेश्वर ने उसका प्लान, उसका ब्लू प्लान दिया, उसकी ब्लू प्रिंट दिया, उसकी स्ट्रैटेजी दी, और कैसे उसने उसको बनाया, और कैसे डेविड सॉल के हाथों से बच गया डिस्क्रेशन के द्वारा। उसने शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया, बट डिस्क्रेशन गेव हिम इनफ एबिलिटी टू गेट आउट। और यीशु मसीह ने डिस्क्रेशन के द्वारा वॉर्न किया किन्हें? अपने चेलों को, कि रोमन्स की इम्पेंडिंग जजमेंट आ रही है। अगर आप पढ़ें मत्ती 10 का 23 में, मत्ती 24 का 15 और 18 में, यीशु मसीह ने पहले देख लिया 70 AD को क्या होने वाला है। और पॉल के पास डिस्क्रेशन थी। पॉल 3 मरतबा बचा क्योंकि उसने डिस्क्रेशन को यूज किया। प्रेरितों के काम 9 का 23 से 25 पढ़िएगा, और फिर 17 का 24 और 23 का 17 पढ़िएगा। हाउ ही एस्केप्ड, गॉड गेव हिम डिस्क्रेशन। इवन जीसस यूज्ड इट। कहां पे? लूका 9 अध्याय का 29 और 30 वचन पढ़िए। डिस्क्रेशन और नॉलेज आपको चाहिए, दूसरा पिलर। तीसरा पिलर है फियर ऑफ गॉड। आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, फियर ऑफ गॉड। वचन में लिखा है द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो आप सभी जवाब देंगे जी हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि क्या आप यीशु मसीह से डरते हैं, तो आपको थोड़ा सीरियस होके अपने दिल पे हाथ रख के इसका जवाब देना चाहिए। लोग प्रीति करते हैं प्रभु से, लेकिन प्रभु से डरते नहीं हैं। स्पिरिट ऑफ फियर, आपको मालूम वो जो क्षमादान है ऐसे, जिसके अंदर 7 चिराग जलते हैं, वो 7 रूहें हैं। वो होली स्पिरिट नहीं है, वो 7 स्पिरिट्स, वो 7 अलग अलग रूहें हैं। वो 7 आर्कएंजल हैं जो रेवलेशन के अंदर हैं।
वो आपके जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे आप प्रभु के संग पवित्रताई में, धार्मिकता में, निष्ठा के साथ प्रभु के संग, प्रभु के कलाम में बढ़ते जाते हो, गॉड रिलीजेस दो स्पिरिट्स, दे आर एंजेलिक बीइंग्स। यीशु मसीह के संग संग थे वो साथ के साथ। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय के 2 वचन में यीशु मसीह के विषय में लिखा है। आपको मालूम, वो 7 उसके चिराग जलते हैं, उसके सेंटर में एक जो चिराग होता है उसके अंदर ऑयल डाला जाता है। वो 3 इधर जो है उनको भी ऑयल देता है, 3 इधर जो उनको भी ऑयल देता है। जो बीच में सेंटर में होता है वो मेन होता है। आपको मालूम वो क्या है? ये 7 रूह हैं, वो 7 चिराग, जिसे हम मनोरा बोलते हैं, दीवट क्षमादान बोलते हैं। उसके सेंटर वाला जो है वो है द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर यहोवा के डर का आत्मा है, आपका सारा जीवन ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट होगा। बहुत खूबसूरत ढंग से आपके जीवन का हर एक पहलू, आपका परिवार, आपका घराना, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपके जीवन का हर पहलू अपनी अपनी जगह पे आ जाएगा अगर आपके अंदर स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड होगा। बहुत सारे मैंने सेवक पासवान देखे हैं, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड नहीं है। बहुत एरोगेंस से भरे हैं, प्राइड से भरे हैं। अपनी संसार की जो उपलब्धियां हैं, जो संसार में मटेरियल चीजें हासिल की हैं, उसके इधर मेडल लगा के घूमते हैं, या अपने जो प्रभु ने काम लिए उनके द्वारा उनके बैजेस लगा के घूमते हैं। दैट्स नॉट। आपको मालूम, प्रूडेंस की अपोजिट है एरोगेंस। ये है स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये विजडम की बिगिनिंग है। बुद्धि आपने प्रभु से मांगी कि मुझे बुद्धि दीजिए। आपको मालूम प्रभु आपके अंदर कौन सी आत्मा मैनिफेस्ट करेंगे? स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। क्या आप प्रभु से डरते हैं? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप प्रभु से प्यार करते हो, आप बैठे हो कहीं, आपके मन में ख्याल आता है कि मैं गलत काम करने के लिए जाऊं, कसीनो में जाऊं या प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु का प्यार आपको रोकेगा नहीं, आप चले जाओगे। लेकिन अगर प्रभु का डर होगा तो आप यूसुफ की तरह वहां से भाग जाओगे। यूसुफ ने पोतीफर की बीवी को एंटरटेन इसलिए नहीं किया क्योंकि यूसुफ यहोवा से प्यार ही नहीं करता था, यूसुफ यहोवा से डरता था। हालेलुया। नीति वचन 8 का 13 आपने पढ़ना है, 1 का 7 पढ़ना है, और साम 84 मैं चाहता हूं हम पढ़ लें। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, साम 8, भजन संहिता 84, बहुत जबरदस्त भजन है अकोरा के बेटों का। साम 84 की 11 वर्स में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, फॉर द लॉर्ड गॉड इज सन एंड शील्ड, द लॉर्ड बेस्टोज फेवर एंड ऑनर, नो गुड थिंग्स डज ही विदहोल्ड फ्रॉम दोज हु वॉक इन हिज फियर। हालेलुया। जो यहोवा के डरवैये हैं, वचन में लिखा है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड देम दैट फियर द लॉर्ड। फिर मैंने आपको बताया था मलाकी 3 अध्याय के 16 वचन में एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है जो यहोवा से डरते हैं, और वो प्रभु की बातें जब करते हैं, वचन की बात, तो स्वर्ग में बैठा महाप्रतापी परमेश्वर अपना कान झुकाता है, सुनता है, और उसके एंजल उनकी बातों को लिखते हैं। और प्रभु कहता है, ये मेरे ज्यूल्स हैं, मेरे क्राउन के अंदर नगीने हैं, क्योंकि ये मुझसे डरते और मुझसे प्रीति करते हैं। वो एक अलग ग्रुप है। हालेलुया। यहोवा के डर का आत्मा मांगिएगा। इसके बाद जो अगला खंबा है, हम वापस आए प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 8 में, हम पढ़ते हैं, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू हेट इवल, आई हेट प्राइड एंड एरोगेंस, इवल बिहेवियर एंड परवर्स स्पीच। 14 वचन हम पढ़ें। 14 वचन में लिखा, कौंसल एंड साउंड जजमेंट आर माइन। कौन सा चौथा खंबा है? काउंसल। काउंसल क्या है? युक्ति हिंदी में लिखा शायद, सलाह, एडवाइस, वाइज गाइडेंस, बुद्धि से भरी गाइडेंस देना। आपको मालूम, राजा दाऊद जो था, राजा दाऊद के महल में उसके जो दरबारी थे, उसके जो मिनिस्टर थे, उनमें पहला राजा 12 का 6 आप पढ़िएगा, पहला 1 किंग 12:6, तो वहां पे अहीतोफेल और हुशै नाम के बंदे थे। वचन में लिखा, अहीतोफेल जो भी बात बोलता था वो पृथ्वी पे गिरती नहीं थी बिना पूरे हुए। इनको नबियों की कैटेगरी में नहीं रखा गया, दे आर नॉट सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, बट जो भी वो विजडम बोलते थे, गॉड ऑफ हेवन वुड ऑनर इट।
डेविड की किंगडम को एक्सपैंड करने में, डेविड के थ्रोन को एस्टैब्लिश करने में इन वाइज लोगों की काउंसिल का बहुत बड़ा योगदान था। नीति वचन प्रोवर्ब में से एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब चैप्टर नंबर 19 निकालिए, नीति वचन 19 अध्याय और उसका 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, लिसन टू द एडवाइस एंड एक्सेप्ट डिसिप्लिन एंड एट द एंड यू विल बी काउंटेड अमंग द वाइज। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको मिले, यहोवा के रूह से भरा और यहोवा के भय में चलने वाला, वो आज के झूठे नबियों से बेटर है। दे हैव पुट यू डाउन, नन ऑफ देयर प्रोफेसीज। काउंट करें भाई और बहनों, कितनी उनकी प्रोफेसीज पूरी हुई हैं। जो बड़े बड़े फैंसी वर्ड बोलते हैं, अफ्रीका के पादरियों के बड़े बड़े फैंसी वर्ड यूज करते हैं, दे नेवर केम टू पास बिकॉज दे टर्न्ड इट इनटू whoredom and merchandise. They prostituted with God's precious prophetic anointing, and God disdained it. He detested and he was wroth, and he didn't hearken unto them. He is not listening to their motivational, the psychology, the science, the positive thinking that they are preaching from the pulpit. God is not giving ear. He is calling you and me to return to the word of the Lord. उसके कलाम की ओर लौटिए, हालेलुया, और सच्चे कलाम की ओर। और अगला जो पिलर है, पांचवा, वो है साउंड विजडम। क्या है? साउंड विजडम। इसे अगर आप हिब्रू में देखेंगे, इट मींस वाइज बिहेवियर। आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट, आपका, ये पांचवा पिलर इन्फ्लुएंस करता है। आप वाइज डिसीजन लेते हो, हालेलुया। आपका बिहेवियर, आप लोगों को वाइजली हैंडल करते हो, आपको लोगों के साथ जीने का सलीका दिखाता है। कौन? साउंड विजडम, फिफ्थ पिलर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ तीन चीजें अटैच्ड हैं। अगर आप इस वर्ड की स्टडी करेंगे पूरे हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में, पहला वर्ड है राइचियसनेस। आपको मालूम, हिब्रू में राइचियसनेस या राइचियस बंदा, उसका सीधा मतलब होता है स्ट्रेट, सीधी चाल चलने वाला। और दूसरा वर्ड इसके संग कनेक्ट है जस्टिस। जस्टिस का मतलब है बंदे को एबिलिटी है डिसर्न करने की। जैसे आप लोगों से सुनते हो ना, ओ जी पास्टर विनोद तो ऐसा है, वो तो ऐसा, उसने तो ये किया था, उसने तो वो किया था, तो उसके ऊपर बेस करते हो अपनी जजमेंट। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। ये है डिसर्नमेंट, इसे बोलते हैं जस्टिस। हालेलुया। बहुत से लोगों ने ओपिनियन बनाई है किसी के विषय में दूसरे लोगों की बातें सुन के। कितनी खतरनाक बात है। आप लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट करते हो। यू जस्ट किल योर ब्रदर एंड सिस्टर। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, हाउ कैन द लव ऑफ गॉड रिमेन इन यू? यू हैव मर्डर्ड योर ब्रदर एंड सिस्टर। तो जस्टिस, एबिलिटी टू मेक राइट डिसर्नमेंट, ये आपको चाहिए। यीशु मसीह के विषय में लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय में, वो आंखों के देखने से नहीं निर्णय लेता था, कानों के सुनने से फैसला नहीं लेता था। तो वो कैसे लेता था? वो 7 एंजेलिक बीइंग्स, वो 7 रूहें उसके ऊपर थी, वो उनके द्वारा लोगों को जानता था कि लोग कैसे हैं, कौन कैसा है, किसी के कहने के ऊपर नहीं। और तीसरा वर्ड है इक्विटी। इसका मतलब है टू बी ऑनेस्ट, टू बी इम्पार्शियल, फेयर। ये नहीं देखना, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, अपना पराया, फेयर डिसीजन आप लेते हैं। हालेलुया। ये साउंड विजडम क्रिएट करती है 3 वर्च्यू हमारे अंदर। छठा पिलर है अंडरस्टैंडिंग, 8:14 में। 8:14 के अंदर छठा पिलर है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। 8:14, काउंसिल एंड साउंड जजमेंट आर माइन, आई हैव इनसाइट। यहां पे लिखा वर्ड इनसाइट, आई हैव पावर, लेकिन ये वर्ड है अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया, हिब्रू वर्ड है बिना। अंडरस्टैंडिंग, समझ, बुद्धि आपको मिली और नॉलेज आपके पास है। बुद्धि और नॉलेज को आपने अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको समझ चाहिए। ये छठा पिलर है, समझ। आपकी लाइफ को, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेगी, डिसिप्लिन करेगी, आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर करेगी,
आपकी लाइफ को गॉडली, राइचस, डिवाइन पाथ पे चलाएगी। आप डिसिप्लिन्ड होंगे, प्रभु के मार्गों को जानेंगे, प्रभु की आवाज़ को समझेंगे और प्रभु के वचनों को जानेंगे। आपको कोई डिसीव नहीं कर पाएगा इजीली। ये है अंडरस्टैंडिंग। और छठा जो पिलर है वो है पावर। 8:14 में पावर कब आएगी? जब ये 6 वर्च्यू आपके पास हैं, 6 खंबे हैं, एंड द रिजल्ट विल बी द पावर। तो यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं लूका 2:52 में, ही ग्रू इन विजडम, इवन द सन ऑफ गॉड, impeccably pure, holy, flawless, with divine Yehovah's DNA, needed to grow in wisdom। आपको और मुझे कितनी ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है। आपको प्रोफेसी नहीं चाहिए। यू डोंट हैव टू रन अराउंड द प्रॉफिट्स। मैं कई लोगों को देखता हूँ, प्रॉफिटों को मिलने के लिए कोई अफ्रीका जा रहा है, कोई साउथ अफ्रीका जा रहा है, कोई किसी भी देश में जा रहा है, hefty रकम उनको देते हैं कि उनके लिए प्रोफेसी करें। आपको मालूम क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का प्रभु के संग कोई रिश्ता नहीं है। जिसका प्रभु के साथ रिश्ता है, प्रभु का आत्मा उसके साथ बातें करता है और ये 7 खंबे उसके जीवन में होते हैं। उसको प्रॉफिट नहीं लीड करते, उसे पवित्र आत्मा लीड करता है। वो परमेश्वर के कलाम में गुंदा हुआ जीवन जीता है। उसके जीवन में ये एक्सलेंट वर्च्यूज होते हैं। आपको प्रोफेसी नहीं चाहिए। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं प्रोफेसी को डिस्पाइस नहीं कर रहा हूं, लेकिन नए नियम में प्रोफेसी एनकरेजमेंट के लिए है। समझ रहे हैं आप? नए नियम और ओल्ड टेस्टामेंट के प्रोफेटिक डिमेंशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा आज प्रॉफिट नहीं, आज भी प्रॉफिट हैं खुदा के सच्चे, जो कहेंगे दस सेज द लॉर्ड, और वो होगा। लेकिन जो प्रॉफिट कहता है, अभी मैं कई प्रॉफिटों के बारे में सुन रहा हूँ, एक कह रहा है, बड़ा फेमस प्रॉफिट है वो, कि होली स्पिरिट मिसलेड मी। और कई प्रॉफिटों को मैं देख रहा हूँ, उनके वीडियोस देख रहा हूँ, कई चीज़ें कि वो कैसे मतलब मेकअप करते हैं, रेजरेक्शन को मेकअप किया, मुर्दों में से जिंदा हो गया। फेक मिरेकल्स। अभी एक कोई प्रॉफिट था, उसने बोला कि 12 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर 13-14 अप्रैल को आके वीडियो डाला कि मैंने इंटरसीड किया प्रभु के आगे और प्रभु ने अपना प्लान चेंज कर दिया। फिर किसी ने प्रोफेसी की थी कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी, व्हाइट हाउस में एक लेडी बैठी है, लेकिन उसने बाद में कैसे अपने आप को संभाल लिया। डैमेज कंट्रोल बहुत जल्दी करते हैं झूठे नबी, कि नहीं भाई, अमेरिकन लोगों ने प्रार्थना बहुत की। समझ रहे हैं आप? विजडम ढूंढिए, परसू विजडम। बुद्धि चौंकों में खड़ी होकर चिल्ला रही है, आ जाओ मेरे पास, मैंने बैंक्वेटिंग टेबल तैयार कर रखा है। बुद्धि लीजिए, बुद्धि से भरिए, कलीसियाएं बुद्धि से भरें, मसीही घराने बुद्धि से भर जाएं, यहोवा की बुद्धि से भर जाएं। यहोवा की बुद्धि हमें सक्सेस करेगी। यहोवा की बुद्धि के अभिषेक के द्वारा ही हम इस संसार को जीत सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। फादर गॉड, आई प्रे that your word will percolate, your word will have access, your word will flow like mighty river, your word that you have thrown, the now word, will go destroy all the darkness and all kind of demonic scaffolding that so-called professional Christianity has created. They will be demolished. Every false edifice that deters, Lord, the simplicity of the gospel of the Lord Jesus Christ will be destroyed in Jesus' name. तेरे आत्मा की ऐसी कुदरत को भेज खुदावंद कि हम तेरे कलाम की गहराइयों को ढूंढें। आशीष दे खुदावंद एक एक जन को, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। शाम को 6 o'clock फिर एक छोटा सा मनन करेंगे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया।